Hello students, welcome again in Anup classes. I Anupam Dikshit. So today's topic is relationship between focal length and the radius of curvature. Relationship between capital R and small m. You know, capital R it is the radius of curvature and small f it is the focal length. So it is found that for a small aperture of a spherical mirror, radius of curvature is twice to the focal length. यानी कि जो हमारे स्मॉल अपर्चर के मिरर्स होते हैं उसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो हमारी क्या होती है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ. 2 इंटू फोकल लेंथ का मतलब ट्वाइस होती है फोकल लेंथ की, यानी कि डबल होती है. दैट्स क्लियर. सो इट इज द रिलेशन बिटवीन अ फोकल लेंथ एंड अ कैपिटल आर. On the basis of this formula, you can write it as a capital R equals to 2f or f equals to r by 2. In another word, you can say that the focal length is the half of a radius of curvature. That's clear. So on this formula, I explain a numerical also. Find the focal length of spherical mirror whose radius of curvature is 20 centimeter. So what is the question? To find the focal length of a spherical mirror whose radius of curvature is 20 centimeter. We know that the radius of curvature is represented by capital R. That means capital R equals to what is given? Capital R equals to 20 centimeter. We also know that what is the relation between, and we want to find that focal length. That means small f. What is the relation between capital R and f? I explained in a previous. Okay, that is capital R equals to 2 into small f. From here we got it, small f equals to r by 2. You put the value, that is 20 by 2, then 2 tens are, that means f equals to 10 centimeter. That's clear. So you can solve the numerical on the basis of this formula by this method. If you have a capital R, then you find the value of small f, and if you have a small f, then you find the value of capital R. That's clear. Then after that I started to explain some rules for image formation of mirror. Rules for image formation. First I know the rules for, then I start the explanation of image formation of a concave mirror, and then after that convex mirror. So I started rules for obtaining the image of, rules for obtaining the image formed by spherical mirror. यानी कि spherical mirror से जो हमें इमेज मिलती है उसके लिए रूल्स क्या है. ओके, सो फर्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि when a ray is
incident parallel to principal axis. कि if I have a two mirrors, first is a concave, okay, and second convex. अगर हमारी रे जो है वो पैरेलल फॉल्स हो रही है, दैट्स क्लियर, यानी कि वो समांतर गिर रही है, तो देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम फोकस, यानी कि वो क्या होगी, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। इसमें क्या होगा कि इट अपीयर्स कमिंग फ्रॉम फोकस, कि वो हमें ऐसा दिखाई देगा कि वो फोकस से आ रही है, दैट्स क्लियर, इट इज अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस, जाएगी तो ऐसी, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है। ये हमारा क्या था, कौन सा मिरर था, कॉन्केव मिरर था, ये हमारा कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर पे हमने बताया कि अगर हमारी रे पैरेलल फॉल्स हो रही है तो देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, और इसमें क्या होगा कि वो हमें ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है। ओके, सो इट इज योर फर्स्ट रूल, अंडरस्टैंड। आफ्टर सेकेंड रूल्स क्या कहलाता है, सेकेंड रूल्स हमारा ये बोलता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, अगर कोई जो रे है वो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, कि इफ a ray is passes from center of curvature then it follow the same path after reflection, यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पाथ से गई है उसी पाथ से वो क्या होगी, वापस हो जाएगी। इसमें भी वही है, हमें ये लगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी, उसी पाथ को फॉलो कर लेगी, यानी कि जिस मार्ग से वो गई है उसी मार्ग से वापस आ जाएगी। क्लियर। सो फर्स्ट रूल हमारा क्या बोला कि पैरेलल अगर है तो वो फोकस से जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, या फोकस से हमें आती हुई प्रतीत होगी। सेकंड कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा सेकंड रूल था, ओके, सेकंड हो गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ को फॉलो करेगी, यानी कि उसी मार्ग पे वापस लौट आएगी। ओके, देन आफ्टर दैट थर्ड रूल, थर्ड रूल हमारा क्या कहता है, थर्ड रूल भी हम समझ लेते हैं। क्लियर, थर्ड रूल भी हम समझ लेते हैं कि क्या है हमारा थर्ड रूल। थर्ड रूल हमारा ये कहता है कि इफ इट इज योर फोकस, इट इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, कि इफ अ रे इज पासेस फ्रॉम फोकस, थर्ड रूल हमारा बोलता है कि इफ अ रे इज पासेस फ्रॉम फोकस, कि अगर वो फोकस से गया है, कहां से गया है, फोकस से गया है, तो देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के जो रे होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दैट्स क्लियर। इफ a ray is appears to coming from a focus, then after reflection it becomes parallel to principal axis in convex mirror. Okay, that's clear. Any doubt? You can understand with the help of a figure also कि the ray is coming and passes from a focus and after reflection it, ये पोल है, इसको P बोल सकते हैं, it becomes parallel. Okay, then after that third fourth rule is that कि I explain laws of reflection. I explained in a previous classes कि laws of reflection. What is the laws of reflection? Go back, थोड़ा सा पीछे जाइए और सोचिए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे क्या थे। क्या थे भाई, कुछ याद आया?
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारा जो सेकंड लॉ था, सेकंड लॉ हमारा क्या कहता था कि इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल्स टू द रिफ्लेक्शन एंगल, सेम. सो फोर्थ रूल इज बेस्ड ऑन दैट कि इफ अ रे इंसिडेंट एट अ पोल, कि अगर कोई रे है वो पोल पे जाके टकराती है, यानी कि पोल से टकरा के या पोल, ठीक है, पोल्स पे इंसिडेंट होती है, तो क्या करती है, दैट मीन्स इट मेक्स अ एंगल विद अ पोल. दैट्स क्लियर. सो देन with the help of a rule, कि if it makes a eye angle with the principal axis, then reflection angle is also, यानी कि जिस एंगल से वो आई है उसी एंगल से क्या होगा, वो चली जाएगी. if ray of a light incident at a pole P of a spherical mirror, ठीक है, with the angle, then it also go back with the same angle. That's clear. यानी कि जिस एंगल से वो आई है उसी एंगल से वो क्या होगी, निकल जाएगी. ये हमारा क्या कहता है, फोर्थ रूल कहता है. That's clear. अब इसमें क्या होगा, इसमें भी वही बात है, यहाँ पे आएगी, टकराएगी और इधर चली जाएगी. That's clear. Any doubt? यानी कि जिस एंगल से वो आई उसी एंगल से निकल गई. तो these are the four rules. फर्स्ट क्या है कि if ray is a parallel to principal axis, then after reflection it goes or appears to coming from a focus. Second, when a ray is passing from a center of curvature, then it follow the same path. That means जिस मार्ग से वो आती है उसी मार्ग पे वापस चली जाती है. थर्ड रूल कि if a ray is passes from focus or appears to coming from a focus in a convex mirror, then after reflection ray becomes to parallel तो प्रिंसिपल एक्सिस योर, यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो रे होगी वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. फोर्थ रूल क्या कहता है कि इफ अ रे इज इंसिडेंट एट अ पोल विद अ एंगल, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज विद अ सेम एंगल, यानी कि जिस एंगल से वो इंसिडेंट हुई है पोल पे उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. दैट इज इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू द रिफ्लेक्टेड एंगल. दैट्स क्लियर. ओके, हैव यू अंडरस्टैंड? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम with the rules, then you can comment in a comment box. And one more thing is, please like, share and subscribe my channel Anuj Classes. Thank you. Have a nice day.